Class 4. Today we will learn about the next chapter, that is Introduction to Concept of Internet. First of all, in this chapter we will see the definition of Internet. What is Internet? Internet is a network of networks that connect one computer to another through a medium. Internet connects multiple computers at a time. And the full form of internet is, in the next line we will see, the full form of internet is international network. Inter means international and net for network. Now we will see what is the use of internet. Multiple uses of internet in the present scenario. In all the aspect of our life we use internet. Just have a look. Internet provides information on any subject or topic. Internet provides us information on any subject or any topic. You can also search the information on internet by surfing. Okay. The next use of internet is exchange messages over internet. We use internet for the exchange of messages. User from any part of the world can exchange messages with each other over the internet and by the help of internet. Chatting through internet. We can chat by the help of internet. Internet allows you to chat with your friends and colleagues through various chatting software. Various chatting software means WhatsApp, Messenger, okay, Skype, different software are there and we can chat through them by the help of internet. There is a compulsion of internet connection, then you can chat with these softwares. Now internet allows you to download your favorite songs and movies. Internet allows you to download, you all know. Then when you required any song or movies, you can download from the internet. The next use of internet is you can book your flight and railway ticket online. You can book your flight and railway ticket online at any place or anywhere. Okay. You can even book hotels online before you actually reach the destination, and you can pre-book the hotels. Pre-book means आप पहले से ही होटल को बुक कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं पर भी पहुंचने के बाद. ओके. नेक्स्ट इज इंटरनेट अलाउज यू टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन फ्रॉम एनीवेयर. एंड इंटरनेट अलाउज यू टू ट्रांसफर मनी, okay, to anyone from anywhere. Even when we use ATM, we also actually use the internet, because हमारा जो अकाउंट होता है वो एक सिटी में होता है और हम दूसरी सिटी से भी क्या कर सकते हैं, वो पैसा जो है वो निकाल सकते हैं. ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं चाहे राउटर का मीडियम हो चाहे और कोई मीडियम हो, अभी राउटर वगैरह थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, बट कोई सा भी मीडियम हो, आप अल्टरनेटली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इंटरनेट की हेल्प से ही पैसा निकाल पाते हो. ओके. और ट्रांसफर भी कर सकते हो. आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक गूगल पे, ओके, फोन पे, different software are there, and we use this software and can transfer the money to another, okay, and pay bill, etc. Now terms regarding to internet. What are the terms that is regarding to internet? First is surfing. Surfing क्या होती है? Surfing means searching for a particular topic or information by moving from one site to another. मीन्स हम कंप्यूटर पर जो भी सर्चिंग कर रहे हैं, चाहे किसी टॉपिक पे कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एक साइट से दूसरी साइट पे जा रहे हो, ये सारी चीजें हम जो भी काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट आर कॉल्ड सर्फिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज वेब पेज. Web page can be defined as a hypertext document on the World Wide Web. World Wide Web पर जो भी hypertext document है, hypertext document क्या होता है, जैसे आपका डिजिटल पिक्चर हो गई, डिजिटल टेक्स्ट हो गया,
ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाइपर टेक्स्ट होते हैं, जिन पर जंप करके हम दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, उन्हें हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और यू कैन से अ सिंगल डिजिटल पेज, सिंगल, ओके, और सिंगल पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ डायरी, जैसे मेरी ये डायरी है, ठीक है ना, ये आपका, आप पूरा मानो वेब पेज नहीं कह रही इसको, ठीक है ना, ये है वेबसाइट, पूरी एक जो डायरी है वो हमारी वेबसाइट है, ठीक है। और इसका जो एक सिंगल पेज है, ठीक है, ये जो सिंगल पेज है उसको क्या कहेंगे, वेब पेज, ठीक है। और वेब पेज का जो सारा कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वेबसाइट। अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, इट हैज ए स्पेसिफिक एड्रेस। जो वेबसाइट होता है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, और इनका कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और जो स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है, उसको www से स्टार्ट करते हैं, और जो www से स्टार्ट होता है उसे ही URL कहते हैं। ये भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, www से, और www हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। www means World Wide Web, has many connected computers, it provides access to any information। जितने भी कंप्यूटर पे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है ना, ये कौन कंटेन करके रखता है, www, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। सारा जो जितना भी इंटरनेट है, ठीक है, उसमें जितने भी वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उन्हें कंटेन करने का काम इसी www का होता है। नेक्स्ट इज ब्राउजर। ब्राउजर रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है ब्राउजर, दैट एनेबल्स यू टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जो आपको इंटरनेट को एक्सेस करने में इंफॉर्मेशन को एनेबल करता है, ठीक है ना। जब भी हम पेंट यूज करते हैं, हम इंटरनेट थोड़ी ना यूज करते हैं, पेंट के थ्रू हम इंटरनेट यूज नहीं करते, वर्ड करते हैं हम, वर्ड में भी नहीं करते, ठीक है ना, वर्ड पैड यूज करते हैं, अभी तक आप लोगों ने यही सॉफ्टवेयर यूज करे, तो इन सब में हमने कभी इंटरनेट का यूज थोड़ी ना करा है। इंटरनेट का यूज करने के लिए हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसका नाम होता है ब्राउजर, ठीक है ना। उस ब्राउजर के मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत कॉमन है, ठीक है ना, सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर यही आता है। गूगल क्रोम गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है, सफारी जो है एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, और मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउजर है, ठीक है ना। ये कॉमन ब्राउजर्स है, ओपेरा, ओपेरा मिनी, ठीक है ना, ये सारे ब्राउजर्स के टाइप है। नेक्स्ट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज अ टेक्स्ट डिस्प्ले इन ब्लू कलर ऑन द स्क्रीन, व्हेन क्लिक्ड टेक यू टू सम अदर पेज। हाइपरलिंक जो होता है वो एक तरह का टेक्स्ट होता है जो हमें ब्लू कलर का नजर आता है, ठीक है, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं वो हमें किसी और पेज पर पहुंचा देता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट होता है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, ठीक है ना, तो हम उनको पलट कर तो जा नहीं सकते, हम उसको पलट के दूसरे पेज पर तो नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, कुछ हाइपर टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, ठीक है, हाइपर लिंक यानी कि हाइपर लिंक टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, और उन पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पर या जो भी रिक्वायर्ड पेज है उस पर हम जंप कर जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको एक हाइपर लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है आईपी एड्रेस, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आईपी एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय अ डॉट which identifies each computer on the World Wide Web। वर्ल्ड वाइड वेब पर हर एक कंप्यूटर को उसका एक यूनिक एड्रेस मिलता है, यूआरएल वाला नहीं, वो तो www वाला होता है, एक हिडन एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो हिडन एड्रेस होता है उसे हम डॉट से सेपरेट करते हैं, और ये जो हिडन एड्रेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर में होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए हम आईपी एड्रेस का ही यूज करते हैं, क्योंकि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने बारे में तो बताते नहीं है, अपना नाम वगैरह तो बताते नहीं है, लेकिन वो अपना आईपी एड्रेस भी हाइड नहीं कर सकते, तो उन्हें पकड़ने के लिए आईपी एड्रेस का ही यूज होता है। नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू द इंटरनेट बाय चार्जिंग अ फी फॉर इट। आईएसपी जो होती है वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए देती है
और आपसे एक फी जो है वो चार्ज करती है। जैसे आप लोग जो बोलते हैं ना कि हमें मोबाइल में रिचार्ज करवाना है, ठीक है, तो वो जो रिचार्ज करवाना है वो बिना पैसों के तो होगा नहीं, वो फी लेते हैं और आपको क्या देते हैं उसके बदले में, डेटा देते हैं। और जिस कंपनी की सिम आप यूज कर रहे हो वही आपका क्या है, ISP। जैसे आप जियो की सिम यूज कर रहे हो तो जियो आपका ISP है, ठीक है। आप वोडाफोन यूज कर रहे हो तो वोडाफोन आपका ISP है। आप एयरटेल यूज कर रहे हो तो एयरटेल आपका ISP है, ठीक है ना। तो ये सारी कंपनी जो फोन कंपनीज होती हैं वो ही क्या होती हैं, ISPs होती हैं, ठीक है। ये आपसे फी चार्ज करती हैं और आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है URL। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर वेबसाइट का अपना एक अलग एड्रेस होता है जो www से स्टार्ट होता है, और जो एड्रेस www से स्टार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, URL। और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको दी हुई है, ठीक है ना। इसको एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, which is the address of a website. It is typed on the address bar of the search engine. जब भी हम सर्च इंजन पर कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी www। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं होम पेज, ठीक है। होम पेज अभी मैंने इसको मार्क नहीं